evening Friday. Take me to some engineering colleges around Pune. Boss, this is Bharati Vidyapeeth College of Engineering, Lavale, an empire that started from a small class and now to a university. The journey is quite amazing, but today I'll take you to this campus situated far away from the city and its crowd, surrounded by greenery and guarded by a hill. Let's go inside. This is the amphitheater used for various activities. Recently, people from MTV Roadies, team from Yuva, and TEDx speakers have come to the college. Basically, this college has 4 departments, which are Mechanical, Civil, ENTC, and Computer. Well-equipped labs are one of the best facilities available. And sports? This college has excelled in basketball, football, cricket, badminton, kabaddi, TT, volleyball, chess, carom, boxing, and cross-country. They also involve students and teachers in social activities and always help the needy people. They also teach students about disaster management and attend various seminars which include self-defense for girls, industrial visits, etc. They have also filed patents with students, and I must tell you, boss, it impressed me a lot. Friday. Which all companies come here for placements? Here's a list of the companies. What else is the best thing about the college that will convince you? The best thing about the college is the teacher-student relationship. They are more like friends than teachers or professors. Friday, get my Mark 7 ready. I want to visit the college right now. Okay, boss. A very warm good morning to all of you. Welcome to the session on things to do for 15 days to exam. In my introduction, I am Ankit Kumar Chheda, your physics tutor in this session. I have been teaching physics for more than 13 years now, and my expertise revolve around competitive exams like CET, JEE, NEET, etc. So in the today's session, we will be looking at a few things like things to know before appearing exams. Okay, so यहाँ पे हम लोग mostly देखेंगे कि what type of questions you are supposed to tackle, किस type का question आएगा, उसको किस तरह से solve करना है and all. Now आपका CET exam जो है वो online exam है. So वहाँ पे like how to solve, what are the problems student face during the online exams, हम उस पर थोड़ा highlights करेंगे. Then marking schemes हम देखेंगे और फिर कुछ tips and tricks देखेंगे on like जो last year का paper है 2019 का, उसका पेपर को ही एज अ MCQ प्रैक्टिस करके हम उसके ऊपर ही समझेंगे कि हाउ टू यूज़ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. कल के सेशन में वी विल डू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. वंस वी लर्न ऑल दिस बेसिक थिंग्स लाइक थिंग्स टू नो, लाइक एक छोटा सा मोटिवेशन लेने के बाद में एग्ज़ाम का अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में कल के सेशन में हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजीज टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिज़िक्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए. देन फिज़िक्स ऐसे ही बदनाम है उसके कैलकुलेशंस के लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो जाता है. तो कपल ऑफ टेक्निक्स वी विल सी. एक होगा अप्रॉक्सीमेशन थियोरी, जिससे कैलकुलेशन यू कैन डू क्विकली, और ये सब हम लोग देखेंगे. जस्ट प्रवचन की तरह ना देखते हुए हम लोग यहाँ पे भी कुछ MCQs क्वेश्चंस पिक करेंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम द 2019 पेपर itself. ऑलमोस्ट पूरा पेपर ही डिस्कस हो जाएगा इन 2 सेशंस में.
चलिए शुरू करते हैं विथ आवर सेशन. सो थिंग्स टू नो बिफोर अपियरिंग फॉर MST CET. ओके, सो यहाँ पे अभी आपका कुछ वीक्स में आपको एग्ज़ाम देना है. सो ड्यूरिंग दिस लास्ट डेज बिफोर द एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वालिटीज़ पे आपको टेस्ट किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम. ओके, और ये क्वालिटीज़ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है. फर्स्ट होगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि स्टूडेंट को कितना कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है एंड ऑल स्टफ. ओके, अभी यहाँ पे अगर आपका एनालिटिकल स्किल्स में हाउ यू थिंक, जब भी क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला चीज़ हम क्या सोचते हैं, किस हिसाब से हम लोग उसको बिहेव करना चाहते हैं क्वेश्चंस को. सो वहाँ पे हमारा एनालिटिकल स्किल्स होगा. नेक्स्ट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़. कॉम्प्रीहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग. आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में किस तरह का प्लान ऑफ एक्शन आप डिज़ाइन करते हो आपके दिमाग में जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन, तो वहाँ पे आपका कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी टेस्ट किया जाएगा. एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. नाउ पेपर पैटर्न आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट पता ही होगा. फिज़िक्स प्लस केमिस्ट्री मिलके आपको होंगे 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, जिसमें फ़िज़िक्स के होंगे 50, केमिस्ट्री के होंगे 50, और इसको टाइम होता है 90 मिनट्स. सो अगर आप देखो तो वी हैव लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपका जो कंसिस्टेंसी है टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन वो आपका इंपॉर्टेंट है ना. इट्स नॉट लाइक कि एवरी क्वेश्चन आपको लेस देन 1 मिनट में ही अटेम्प्ट करना है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा कम टाइम लेंगे, जहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हो. सो वो सब चीज़ें हमको यहाँ पे भी समझ के उस हिसाब से हमारा पेपर को किस तरह अप्रोच करना है वो किया जाता है. नाउ यहाँ पे इफ़ यू नोटिस फिजिक्स और केमिस्ट्री कंबाइंड पेपर आता है. इसमें भी अगर आप ध्यान दो तो C2 इज सॉर्ट ऑफ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, राइट. तो इसके क्वेश्चंस हमारा ज़्यादा पहले होके टाइम बच सकता है. तो ऑलवेज स्टार्ट विथ योर पेपर विथ C2 अगर आपका C2 स्ट्रॉन्ग है तो. अगर C2 स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कुछ चेंजेस मत करिए. सिंपल क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 100 लाइन से सॉल्व करते जाइए, कोई इशू नहीं होता है. ओके, सो अभी इसमें भी एग्ज़ाम में कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली. सो हम यहाँ पे इसको 3 लेवल्स में डिफ़ाइन करते हैं. आप इसको इस तरह सोचिए कि दीज आर योर इजी, मीडियम एंड हार्ड कैटेगरीज में. आप इसको इस तरह सोचिए. नाउ जो इजी क्वेश्चन होते हैं और लेवल 1 क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1 क्वेश्चंस में क्या किया जाता है, तो आपका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जाता है. ओके, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एक्चुअली सॉल्व करने के लिए. लाइक आपके सिलेबस में से कोई स्टेटमेंट दे देंगे और आपको 4 ऑप्शंस है, डायरेक्ट पढ़ के आंसर कर दो, या फिर कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो सीधा फार्मूला बेस्ड है, लाइक फार्मूला लिखो, वैल्यूज़ डालो, आंसर निकालो एंड ऑल स्टफ. वेरी इजी टू डू थिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज़ योर लेवल 2 क्वेश्चंस जो थोड़े लेंदी होते हैं, और ये बेसिकली आपका एनालिटिकल एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को टेस्ट करेंगे. ना यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली कोई क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें डेटा आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है. डेटा आपको टाइम पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, या टाइम पे उसको डिराइव करना पड़ेगा, या समझना पड़ेगा. बेसिकली हिडन डायरेक्ट डेटा, इनडायरेक्ट डेटा एंड ऑल स्टफ. ओके, तो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे वो यही लेवल के होंगे. एंड लास्टली लेवल 3 क्वेश्चंस, जहाँ पे आपका रीजनिंग स्किल्स एंड मैथमेटिकल एबिलिटी दोनों काम आएंगे. ओके, दीज आर मोर लाइक योर नॉलेज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, आप बोल सकते हो इनको इन अ वे. नाउ एक रफ एस्टिमेशन दिया जाए तो लेवल 1 क्वेश्चंस अराउंड 20% होते हैं पूरे इसके. अराउंड लाइक हो सकता है 17, 18 और 22, 23. ओके, तो आई एम जस्ट टेकिंग अ राउंड नंबर. ये होते हैं आपके अराउंड 60%, और ये होते हैं आपके अराउंड 20%. सो अगर आप 50 क्वेश्चन की बात करोगे, सो ये क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होंगे आपके 30 क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके 10 क्वेश्चंस. ओके, अभी ये क्वेश्चन को हम लोग लेवल्स में डिफाइन करते हैं और हार्ड में, इजी, मीडियम, हार्ड में डिफाइन नहीं करते. बिकॉज क्या होता है, हार्ड क्वेश्चन सुनने के बाद में हमारा दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है. इवन दो दे आर नॉट रियली हार्ड, वो आपका सिर्फ नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं इन डेप्थ. ओके, कभी कभी आपका
कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टर्म्स आ जाएंगे, जैसे कि डिनोमिनेटर में कोई प्राइम नंबर आ गया तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको डिवाइड करना ही पड़ेगा, राइट। तो उस टाइप की चीज़ों आपके जनरली यहाँ पे होती है। दीज आर नॉट रियली अ हार्ड क्वेश्चंस, ये सिर्फ घुमा फिरा के पूछे हुए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। सो इन टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे लाइक हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से पूछा गया है, एंड जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लेवल 2 के कैटेगरी में डाल सकते हैं, जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला ना लेते हुए वही फार्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो नाउ आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दोगे तो जब भी आप एग्ज़ाम को अपीयर करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट ली है बहुत बढ़िया, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अगर ऑनलाइन मॉक टेस्ट अभी तक नहीं की है तो डू सम ऑनलाइन मॉक टेस्ट। भारतीय विद्यापीठ के कैंपस की तरफ से भी कुछ ऑनलाइन टेस्ट अरेंज की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। सो इन दिस इफ़ यू नोटिस इंटरफेस कैसा है, तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन पैनल, जहाँ पे ऑब्वियसली आपको क्वेश्चन दिखेगा, राइट। और ये वाला जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी क्या होता है, हमारे हाथ में अगर ऑफलाइन पेपर है, एक पेपर पे क्वेश्चन प्रिंट करके आपको दिया हुआ है, तो वो सिचुएशन में आप क्विकली उसको स्कैन कर सकते हो, कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। कुछ क्वेश्चंस वो स्कैनिंग के टाइम पे आपको पता होते हैं, जो थियरी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उनको स्कैनिंग के टाइम पे ही मार्क करते हुए चलते हो, राइट। बट यहाँ पे हमारे पास वो फीचर नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको पास एक तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले ही 1 मिनट से कम टाइम है, उसमें भी आपको एक एक क्वेश्चन एट ए टाइम पढ़ना है, आपको स्कैन करने नहीं मिलेगा पेपर। जो पेपर हाथ में आने के बाद हम नॉर्मली 3-4 मिनट जो पेपर को स्कैन करते हैं, वो चीज़ में ही हमारा 4-5-6 क्वेश्चन भी निकल जाता है, तो फिर मुझे बचे हुए टाइम में ही सिर्फ उतने क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो वो एक बेनिफिट होता है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से मेरा ये क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको मार्क करके रिव्यू के लिए रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको सीधा सेव करके आगे निकल जाऊँ। अगर मैंने यहाँ पे मार्क किया है आंसर को और मैं सेव कर रहा हूँ, तो आपका कुछ आइकन इस तरह का होगा, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल, मुझे नहीं पता फाइनल इंटरफेस ऐसा होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्ट यही होगा कि नहीं होगा, बट कुछ इस तरह का ही होना चाहिए। तो वहाँ पे जब भी आप आंसर को मार्क करके सेव करोगे तो आपको ग्रीन दिखेगा, मतलब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है और आंसर को लॉक भी किया है, राइट। फिर अगर आप क्वेश्चन को मार्क करोगे लेकिन रिव्यू के लिए रखोगे, तो वो कलर कुछ इस तरह का दिखेगा। मतलब अगर आपने ऑप्शन को मार्क नहीं किया है और रिव्यू के लिए रखा है, तो आपको कलर ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, नाउ आपने ऑप्शन को मार्क किया है लेकिन फिर भी रिव्यू के लिए रखा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है आपके आंसर पे, तो आपको कुछ ये सेटअप इस तरह का दिखेगा, जहाँ पे कुछ आइकन होगा या कोई अलग कलर यूज़ किया जाएगा। अगर आप इस चारों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हो एंड सेव एंड नेक्स्ट करते हो, तो वो क्वेश्चन एक अनमार्क की तरफ चला जाएगा, नॉट आंसर्ड के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन को पॉप करते चलो, मतलब क्लिक करते चलो, क्वेश्चन पढ़ो, आता है ठीक है सॉल्व करो, नहीं आता है तो क्या करना है। सिंस सीईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो दिस फीचर मार्क फॉर रिव्यू नहीं, मतलब आपको ऐसा ये जो 2 फीचर्स है जहाँ पे आपने क्वेश्चन को बिना ऑप्शन क्लिक किए ही आगे जा रहे हो या फिर मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो, वो चीज़ आप अवॉइड करो। सो माय पॉइंट इज़, अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको आता है, तो आप एक आंसर मार्क करके आगे बढ़ो, सेव करते चलो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको डाउट है, तो जिस ऑप्शंस पे आपको डाउट है उनको टिक कर दो और मार्क फॉर रिव्यू कर दो। तो उससे क्या होगा, अगर एंड में 90 में जब इस आपके 100 क्वेश्चंस आपके देख के हो जाएंगे, अगर एंड में टाइम है आपके पास, तो आप ये क्वेश्चन जिनका कलर इस तरह होगा जो आपने रिव्यू के लिए मार्क किया, आप उन पे आके उन पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते हो, राइट। अगर टाइम कम मिलता है तो वो क्वेश्चन अनमार्क नहीं जाएगा, वहाँ पे एटलीस्ट आपने कुछ मार्क किया हुआ है, क्या पता तुक्का लग जाए। कुछ नहीं से कुछ मार्क करना तो अच्छा है, बिकॉज एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा एडवांटेज लेना चाहिए। नाउ एक चीज़ और यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ऊपर यू विल सी समथिंग लाइक क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, अगर होगा ऐसा कुछ फीचर वहाँ पे, तो यू जस्ट क्लिक दैट, आपको
सारे क्वेश्चंस एक लाइन से देखने को मिल जाएंगे। ओके यहाँ पे ऑप्शंस आर नॉट विजिबल, जो एटलीस्ट मैं जो ट्रायल देख रहा हूँ उसमें ऑप्शंस विजिबल नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस भी विजिबल आ जाते हैं तो ये वाला एज गुड एज आपका पेपर जैसा हो जाएगा, जो हमारा ऑफलाइन पेपर आता है उस तरह का हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली बेनिफिट होता है। तो आपके पास हाथ में जो रफ पेपर है, वो रफ पेपर पे कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है वो देखते चलिए, राइट। अगर ऑप्शंस नहीं है, कुछ इस तरह का ही आता है, देन इट्स यूजलेस, बिकॉज बिना ऑप्शन के आप इसको नहीं देख सकते हो। ओके तो उस सिचुएशन में एक बार इसको अगर ऐसा कुछ मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए, तो एक बार उसको क्लिक करके देखिए क्या वहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस भी है। ऑप्शंस है तो जैसे हम ऑफलाइन पेपर में स्कैनिंग करते हैं, पहले पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं, आप इसको स्क्रॉल करके फटाफट एक बार पेपर देख लीजिए और जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनका नंबर एंड ऑप्शन रफ पेपर पे लिख लीजिए। जैसे ही वो नंबर का क्वेश्चन आएगा या वो क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पे सीधा आंसर मार्क करके आगे जा सकते हो। आप पे डबल टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके सो आपको जब ये ऑनलाइन एग्जाम्स आप टैकल करोगे ऑनलाइन का, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है इनको देखने का इज़ फर्स्ट डू एटलीस्ट 10 मॉक टेस्ट बिफोर अपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा बाकी कंपटीशन से। ओके अगर आपको नहीं पता ऑनलाइन मॉक एग्ज़ाम्स के बारे में और समथिंग, तो आप गूगल करके देख लीजिए। देयर आर प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल जो मॉक टेस्ट दे रही है, ऑफ़र कर रही है। वेरी लो कॉस्ट, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और या फिर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम देखें भारतीय विद्यापीठ के तरफ से हम आपके लिए एक पेपर अरेंज कर सकते हैं, या होगा ये आपको इवेंट के एंड होते होते ही अनाउंसमेंट मिल जाएगा। सो चलिए अभी कुछ चैप्टर्स देख लेते हैं कि मार्किंग स्कीम किस तरह होता है। तो हमारे 11th के ये टोटल 8 चैप्टर्स है और इन 8 चैप्टर्स से 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, राइट। अभी इसमें से जो चैप्टर्स है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से होगा ही, नो डाउट अबाउट इट। ओके और ये चैप्टर्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो 11 ये 10 क्वेश्चंस है, ये 10 में से आई एम एक्सपेक्टिंग 7 से 8 क्वेश्चन ये आपके लेवल 1 यहीं पे हो जाएंगे। वेरी बेसिक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई टेंशन। ओके और ये जो चैप्टर्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं लाइक स्केलर वेक्टर्स, फ्रिक्शन इन सॉलिड एंड लिक्विड्स में पर्टिकुलरली लिक्विड वाला पार्ट, नो बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल जो है वो सब, एंड रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट, राइट। ये 3 चैप्टर्स आपके थरोली होने चाहिए, बिकॉज देयर आर चांसेस कि ये 3 चैप्टर्स में एक से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। और सिंस क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी कम होगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये है कि ये चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लेवल 1 के होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो सॉल्व करो टाइप्स। तो वहाँ पे आपके अगर यहाँ से कहीं 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर इसमें से कहीं भी, तो आपके 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गए, राइट। तो उस हिसाब से आपको ये 3 चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको ये सब आता है, क्योंकि अगर आपने 12th बोर्ड दिया है तो ये सब कुछ आपको आता है। आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक खोलो, फटाफट अपना फार्मूला लिस्ट बना लो और सीधा MCQ प्रैक्टिस पे जाओ। वो थ्योरी डेरिवेशंस के झमेले में मत पढ़ना। सिंस यू हैव अपीयर्ड 12th, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी आती है। ओके आपने 11th में पढ़ाई की होगी, नहीं की होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 12th दिया है मतलब ये चीज़ें आपको आती है। एंड बचे 40 क्वेश्चंस जो आएंगे हमारे 12th के सिलेबस से। नाउ हियर 20 चैप्टर्स, 40 क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेशन इज़ 2 क्वेश्चंस पर चैप्टर। अभी कभी कभी ऐसा हो गया कि किसी चैप्टर से, लेट्स से टेक एन एग्जांपल के रोटेशनल से 3 क्वेश्चन पूछ लिए, तो शायद वो कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन वहाँ डाल देंगे। बट ऐसा कुछ 1 या 2 पेयर बनेगा, बाकी आपके मैक्सिमम 2-2 क्वेश्चन ही आपको दिखने वाले हैं, ना कम ना ज़्यादा। ओके तो मेन फोकस यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑसिलेशंस, पुराने CET में जो भी थियरी होता था 11th का नहीं था, 20 चैप्टर्स 50 क्वेश्चंस, तो वहाँ पे स्कोप हुआ करता था। तो वहाँ पे हम कहते थे कि ऑसिलेशन का ज़्यादा अच्छे से करो, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर अच्छे से करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अच्छे से करो। बट अभी वैसा सिनेरियो नहीं है। एंड सेकेंडली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कंप्यूटर में से रैंडम पिकअप किया जाए और आपको 2-2 क्वेश्चंस दिए जाए सेम लेवल के, राइट। सो सारे चैप्टर्स पे ही फोकस रखो यहाँ पे। एंड अगेन अपने 12th बोर्ड्स दी है, तो लास्ट 15 डेज़ में टेक्स्ट बुक पढ़ने से बेटर है कि आप इसके फॉर्मूला लिस्ट देख लो और सीधा MCQ के प्रैक्टिस पे जाओ। ओके नाउ बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिस,
कि हमको देखना है किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह उनको हैंडल किया जाता है एंड ऑल। उसके पहले आपको समझना है कि जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन देखने के बाद ऑफ कोर्स आप पहला काम करोगे उसको पढ़ने का, राइट। बट सिर्फ क्वेश्चन दिया है और आप उसका इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ के समझ रहे हो तो आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो, राइट। जब भी आप रीड कर रहे हो तभी आपको जो गिवन डेटा है वो डेटा एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी है। तो जब भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तभी हम किस तरह डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उस पर आप थोड़ा फोकस करिए। जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्शन करते हो तो ये वाला स्टेप आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए क्वेश्चन शायद दूसरी बार पढ़ना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बेसिकली दूसरी बार या तीसरी बार, 2 या 3 बार क्वेश्चन पढ़ना होता है, वो होते हैं नॉर्मली आपके लेवल 3 क्वेश्चंस। ओके, नॉर्मली लेवल 1 लेवल 2 क्वेश्चन एक बार पढ़ते पढ़ते अगर आप डेटा एक्सट्रैक्शन कर लो तो फिर आपको फिर से वो क्वेश्चन को देखने का काम नहीं पड़ता। जैसे ही आपके पास डेटा आ गया, आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया, आपका क्वेश्चन को लेके अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गया कि आप इसका प्लान ऑफ एक्शन बना लोगे कि लाइक मेरे पास ये डेटा है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला, अगर मैं फार्मूला को ही छोटा करके लिखूँ तो किस तरह मेरा 1-2 स्टेप बच सकता है। और ये 2-3 सेकेंड्स 5 सेकेंड बचा के ही आप पेपर को कंप्लीट करोगे, आपका स्पीड बढ़ाओगे, राइट। अभी सब कुछ हो गया, प्लान ऑफ एक्शन हो गया, आपने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। फिर आएगा फिजिक्स में सबसे बड़ा विलन विच इज़ कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन में आपका स्पीड का जजमेंट लेना इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो इसके बारे में जो ट्रिक्स है वो हम लोग कल के सेशन में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एंड कुछ ट्रिक्स होते हैं फॉर क्विक एंड लेस एग्जॉस्टिव, जिनको हम लोग शॉर्टकट फार्मूलेस के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो शॉर्टकट फार्मूलाज अगर याद है तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी बचेगा, एग्जॉशन भी कम होगा, आपका एनर्जी भी सेफ होगा। अगर याद नहीं है तो ये जो स्टेप्स हम ऊपर के क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे हमारा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg is tied to a string of length 2 meter long and is rotated at constant speed of 40 meters per second in a vertical circle. आपको निकालना है द रेशियो ऑफ टेंशन एट टॉप एंड टेंशन ऑफ बॉटम। तो मुझे क्या निकालना है, टेंशन एट टॉप एंड टेंशन ऑफ बॉटम का रेशियो, एंड दिस इज़ अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और मुझे पता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब भी हम बनाते हैं इस तरह का, तो उस टाइम पे मिनिमम केस जो है, मिनिमम केस में यहाँ पे हम लोग टॉप को 0 लेते हैं एंड बॉटम को हम लोग 6 mg लेते हैं सीधा सीधा। और 0/6 mg 0 होना चाहिए, जो ये ऑप्शंस में नहीं है। सो डेफिनेटली ये जो वेलोसिटी है वो मिनिमम वेलोसिटी का केस नहीं है, और वो दिख भी रहा है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को हम लोग कांस्टेंट स्पीड से कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम केसेस में आपका वेलोसिटी कम होगा, राइट। अभी हमको ये भी पता है कि टॉप का टेंशन एट टॉप ये हमेशा छोटा होगा टेंशन एट बॉटम से, राइट। तो अगर टेंशन एट टॉप अपॉन टेंशन ऑफ बॉटम में लूँ तो ये हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए। सो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस चेकआउट करूँ तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया और बाकी तीनों लेस देन 1 है। तो अभी हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो टू डू दैट हम लोग पहले बॉटम का सॉल्व करेंगे। ओके, सो बॉटम पे जो यहाँ पे जब ये पार्टिकल यहाँ पे होगा एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, तभी इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। तो एक होगा इसका नीचे की तरफ विच इज़ इट्स वेट, और एक होगा इसका ऊपर की तरफ विच इज़ इट्स टेंशन, और ये दोनों का रिजल्टेंट आएगा एक विच विल प्रोवाइड यू नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी मैं यहाँ पे टेंशन को बॉटम कर देता हूँ सो दैट हमको कन्फ्यूजन ना हो। सो नाउ इफ़ आई मेक द इक्वेशन, तो मुझे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से मिल रहा है, तो ये मिल रहा है ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ टेंशन एंड वेट। तो जो भी फोर्सेस हमारे सेंट्रीपिटल की तरफ है वो पॉजिटिव, जो भी अपोजिट है वो नेगेटिव करके हम रिजल्टेंट बनाएंगे और उसको सेंट्रीपिटल में डाल देंगे। नाउ मुझे टेंशन बॉटम चाहिए, तो टेंशन एट बॉटम इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये उधर जाएगा प्लस mg, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv²/r + mg। नाउ इफ़ यू नोटिस, मैंने क्वेश्चन पढ़ते समय ही डेटा को अंडरलाइन करके रख दिया था।
जिसकी वजह से क्या हुआ अभी, आई नो माई मास, माई वेलोसिटी इज़ 40 का स्क्वायर 1600 अपॉन रेडियस मुझे दिया है, जो स्ट्रिंग का लेंथ है वही मेरा रेडियस होगा विच इज़ 2, और 1 प्लस जी का वैल्यू 10 दिया है. सो इफ़ आई डू दिस, ये हो जाएगा 800 प्लस 10 दैट इज़ 8100. ना कहीं ऑप्शन में मैंने ये देखा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, राइट क्योंकि 8100 इज़ बेसिकली, इसके फैक्टर्स आप देखोगे तो ये 19 और 81 ही आएगा, और उसके साथ में जो 79 है वो एक प्राइम नंबर है, तो कोई रेशो या कुछ काट-कूट होने का सवाल ही नहीं उठता. अगर सवाल नहीं है तो वही आपका आंसर हो जाएगा. ओके, स्टिल हम लोग इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, दैट पार्ट जो सेकंड पार्ट है हमारा टॉप का, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे और चेक करेंगे कि हमने जो आंसर गेस किया था क्या वो सही है. सो नाउ टॉप पे मेरा पार्टिकल इधर होगा और इस पे कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, तो ऑब्वियसली वही दो फोर्सेस, एक होगा मास उसका वेट, दूसरा होगा टेंशन. मैं इसको टॉप कर देता हूँ और ये दोनों का रिजल्टेंट विल प्रोवाइड मी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो माई नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई टेंशन एट टॉप प्लस mg. अगेन सेम चीज़, जो फोर्सेस आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में है उनको प्लस, अपोजिट है वो माइनस, यहाँ पे कोई अपोजिट ही नहीं है तो सबको प्लस कर देंगे. नाउ यहाँ से माई टेंशन एट टॉप बिकम्स FCP, mg उधर जाएगा माइनस mg, दैट इज़ mv स्क्वायर बाई r माइनस mg 1600/2, बिकॉज मैं ये वैल्यू ही डाल रहा हूँ, दे आर सेम. माइनस 1 इंटू 10 मतलब क्या हुआ, 800 माइनस 10 दैट इज़ 790. नाउ इफ़ यू पुट वैल्यूज़ हियर, 790 अपॉन 810 हमारा आंसर आ गया, राइट. बट हमने इतना पूरा कैलकुलेशन में टाइम बचा लिया बाय यूजिंग आवर मैथमेटिकल एबिलिटीज़. अंडरस्टैंड, हमारे जो स्किल्स है, स्किल्स की हमने जब भी बात की थी, सबसे पहला चीज़ मैंने क्वेश्चन देख लिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट. अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो सीधा सीधा हो गया. अभी आपको यहाँ पे और टाइम बचाना है, राइट, तो आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखोगे. ओके, लेट्स चेक दैट फॉर्मूला. सपोज ये मेरा एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, दिस इज़ माई वाई एक्सिस जो ऑब्वियसली सेंटर में से जा रहा है, और मैं यहाँ पे एक P पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस. नाउ याद रखना, मैं जो भी एंगल मेजर कर रहा हूँ वो बॉटम पोजीशन से मेजर कर रहा हूँ, मीन्स आई एम टेकिंग दिस बॉटम एज माई रेफरेंस पॉइंट. यहाँ पे इसका टेंशन ऐसे होगा, इसका वेट नीचे की तरफ होगा, एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन टूवर्ड सेंटर. तो इन दिस सिचुएशन ऑल यू कैन डू इज दिस, FCP is equal to T plus minus mg cos थीटा. और अब सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या होगा, जब भी मैं एट बॉटम पे हूँ तो आई कैन पुट माई थीटा का वैल्यू एज 0 cos 0 1, सो मेरा FCP बिकम्स T बॉटम माइनस mg. अगर मैं टॉप पे हूँ, आई विल पुट थीटा का वैल्यू एज पाई, या 180 डिग्रीज कॉस पाई और कॉस 180 इज -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो FCP इज T टॉप प्लस mg. और हमने यही कैलकुलेट किया है थोड़ी देर पहले. ऐसे ही वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का फॉर्मूला भी होता है, विच इज़ RG 3 + 2 cos थीटा, राइट. सो ये टेंशन का भी आप यहाँ से बना सकते हो, दैट इज टेंशन इज इक्वल टू FCP प्लस mg cos थीटा. फॉर्मूला याद रहता है ठीक है, नहीं रहता तो डायग्राम बना लो, डायग्राम बना के एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, राइट. बट अगर आपका मेमोरी स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मूलाज याद रख लो फॉर वेरियस रैंडम थिंग, राइट. और ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये V मिनिमम का केस है, whereas this formula is universal, ये सबके लिए काम करेगा.
और अगर आपको नहीं पता कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में व्हाट इज़ वी मिनिमम का केस, तो एक बार आपको टेक्स्ट बुक खोल के उसको टॉपिक को समझना पड़ेगा. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The real force F acting on the particle of mass m performing circular motion acts along the radius of the circle and is directed towards the center of the circle. आपको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस f. स्क्वायर रूट ऑफ f का वैल्यू निकालना है. नाउ यहाँ पे बोला क्या है, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है और उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज़ f. तो ऑब्वियस है ना, वो f उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बिकॉज बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन तो पॉसिबल ही नहीं है. एंड नाउ इफ़ आई चेक दिस ऑल ऑप्शंस, मुझे हर ऑप्शन में एक टाइम पीरियड का t दिख रहा है. सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाई आर ना लेते हुए हम एम आर ओमेगा स्क्वायर लेंगे, बिकॉज मुझे t दिख रहा है. दिस बिकम्स माई f. मुझे चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ f. सो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ f हो जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ एम आर 2 पाई बाई टी स्क्वायर रूट ऑफ एम आर. और ये आपका एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है ऑफ लेवल 2. फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट ऑप्शंस को घुमा दिया. दिस विल बी माई आंसर. इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पेपर हार्ड नहीं होगा, रिमेंबर दैट. जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हार्ड कतई ही नहीं होंगे. हार्डली आपको 3-4 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक्चुअली आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही होंगे. सो ये क्वेश्चन जो है ये पूरा का पूरा आपका कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं. आपने क्वेश्चन पढ़ने के बाद कितना समझा और किस तरह उसको सॉल्व किया. ओके, एंड दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम MSCET 2019, लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस हैं. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट, जिसका मास m है, एट हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ. अगर h इज इक्वल टू r है तो मेरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, r प्लस h, दैट इज 2r. सॉरी, इट्स थ्राइस ऑफ. थ्राइस ऑफ है मतलब r प्लस 3r, दैट इज 4r. और ये रिवॉल्व हो रहा है. रिवॉल्व हो रहा है मतलब इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी मेरा क्रिटिकल वेलोसिटी होगा. सो जो काइनेटिक एनर्जी है जिसका फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर लेते हैं, वहाँ पे हम वी सी स्क्वायर करेंगे. एंड वी नो किसी भी सैटेलाइट का वी सी का वैल्यू इज़ गिवन बाय जी एम अपॉन स्मॉल आर. या फिर इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जी आर स्क्वायर अपॉन आर. अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है, फॉरगेट इट, कोई ज़रूरत नहीं है. अगर नहीं पता तो यू डू दिस. स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला इज दिस. तो जब भी आपको जी के टर्म्स में आंसर चाहिए, देखो यहाँ पे कैपिटल जी नहीं है, स्मॉल जी है, तो मुझे जी स्मॉल जी के टर्म्स में आंसर चाहिए. तो उस टाइम पे जहाँ जहाँ पे आपको जी एम मिलेगा वहाँ पे आपको जी आर स्क्वायर का वैल्यू डालना है. एंड दिस इज़ द ट्रिक यू विल फॉलो बेस्ड ऑन द ऑप्शन. बेसिकली ये जी एम का वैल्यू स्मॉल जी आर स्क्वायर डालोगे, राइट. सो लेट्स सॉल्व दिस हियर. पुट द वैल्यूज, हाफ एम वैसे ही वी सी स्क्वायर, दैट इज रूट चला जाएगा, जी एम बाई आर बचेगा. व्हाट इज द स्मॉल आर का वैल्यू हमने निकाला है 4r. सो ये 2 इंटू ये स्मॉल आर 4r. अभी ऊपर क्या बचा, m जी एम. अभी ये जी एम का वैल्यू वी ऑलरेडी गॉट, जी आर स्क्वायर, वही यहाँ पे डाल दो. What happens, एक r जाएगा और आपको सीधा मिल जाएगा mgr अपॉन 8 and that will be your answer. राइट, ये भी सेम क्वेश्चन है. पूरा का पूरा वैल्यूज डाल के आपको सिर्फ फॉर्मूला बनाना है. पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को टफ करना है तो मे भी कुछ मास दे देंगे 10 किलो का, हाइट इक्वल टू थ्राइस ऑफ रेडियस है तो r का वैल्यू दे देंगे 6400 किलोमीटर, और आपको बोलेंगे अभी जूल्स में निकालो. राइट, तो उस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. सेम क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे कैलकुलेशन होगा.
तो ये जो क्वेश्चंस है जी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है अभी तक हमने देखा, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने देखे हैं या आगे भी हम देखने वाले हैं, आप एक चीज़ नोटिस करके चलना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एनालिटिकल स्किल्स को चेक कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरह पढ़ रहे हो और किस तरह उसको अप्लाई कर रहे हो। एंड ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली लेवल 2 के होते हैं, जो मेजॉरिटी होता है आपके पेपर में, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A body is projected vertically from the surface of the earth of radius r with the velocity equal to half of the escape velocity. तो आपको मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी निकालना है। ओके, सो ये हमारा अर्थ का सरफेस पे से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है विथ वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ योर एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी एम बाई कैपिटल आर। मैं इसको सरफेस से फेंक रहा हूँ तो कैपिटल आर। सो जो मेरा वेलोसिटी है उसका अगर मैं फॉर्मूला लिखने का ट्राई करूँ, है ना, √2/2 बिकम्स √2, तो वो हो जाएगा gm/2r, राइट। फिर अब क्या किया जाए इस क्वेश्चन में, राइट। मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो ऑब्जेक्ट, रुको, ये मेरा सरफेस था, लेट्स से दिस इज़ माय सरफेस, दिस वाज माय ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका विथ दिस मच वेलोसिटी, तो ये ऊपर जाएगा, एक पर्टिकुलर स्टेज पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा एंड इट विल कम बैक डाउन, राइट। तो ये सिचुएशन में हम अगर यहाँ पे करते हैं कि लाइक जब भी मैंने इसको थ्रो किया और जब भी यहाँ से वापस आया, उस टाइम पे इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड नहीं हुआ है, बिकॉज पूरा मोशन जो एनर्जी मेरे को इनिशियली देना था वो दे दिया। पूरा मोशन आपका ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी योर इनिशियल टोटल एनर्जी, जो कि होगा हमारा कुछ सरफेस पे, दिस पर्टिकुलर सरफेस, शुड बी इक्वल टू योर फाइनल टोटल एनर्जी, जो कि होगा एट दिस पर्टिकुलर हाइट। और टोटल एनर्जी बना किससे होता है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ही तो बना होता है, राइट। अब इसको हम कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको सरफेस के लिए s कर देंगे और हाइट के लिए h कर देंगे। विच भी सरफेस पे था तो मैंने उसको कुछ वेलोसिटी दिया था फॉर प्रोजेक्शन, दिस वन। सो ये हो जाएगा ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला gmm/r इज इक्वल टू ½ m, जब ये हाइट पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी 0 प्लस पोटेंशियल का फॉर्मूला एट हाइट h इज r प्लस h, दिस होल टर्म बिकम्स 0 और आपके पास बाद में बचेगा ½ mv² का वैल्यू विच इज gm/2r माइनस gmm/r इज इक्वल टू माइनस gmm/r प्लस h। अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे तो मेरे पास gmm हर टर्म में है, कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल कर दिया तो दिस विल बिकम 1/4r माइनस 1/r इज इक्वल टू माइनस 1/r प्लस h। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो हाउ यू विल सॉल्व दिस? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 4r हो गया, LCM मिल गया, -1 - 4 इज -3। और इस इक्वेशन को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? भाई सबसे पहला चीज़ जो करना चाहिए, माइनस माइनस कैंसिल, फिर 3r प्लस 3h इज इक्वल टू 4r। ये 3r अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4r माइनस 3r विच इज़ इक्वल टू r। और ये वाला 3 को यहाँ से निकाल के मैं डिवाइड कर दूँ तो दैट विल बी माई फाइनल आंसर, r/3। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका लेवल 3 क्वेश्चन है। नाउ इफ यू नोटिस, ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं स्टार्टिंग में,
राइट। इसमें से जो ये आधा है, दिस इज़ योर डेरिवेशन ऑफ टोटल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी के डेरिवेशन में आता है। ये आधा भी उसके जैसा ही सेम है। बाइंडिंग एनर्जी में दो केसेस है, सरफेस के ऊपर एंड हाइट पे। बस वही चीज़ को यहाँ पे आपको अलग तरीके से पूछा है। दैट इज़ जो डेरिवेशन है थियोरी सिलेबस में, उसके ऊपर बेस्ड हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट। और ये क्वेश्चन को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे गलत सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद इसके पास वेलोसिटी है और ऊपर जाने के बाद उसके पास वेलोसिटी नहीं है, मतलब नीचे था काइनेटिक एनर्जी, ऊपर था पोटेंशियल एनर्जी। डाल दो वैल्यूज, काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर इज एम जी एच। यहाँ पे जी का वैल्यू जी एम बाई, अभी ये जी कौन सा लेना है, सरफेस का लेना है कि हाइट का लेना है, वो एक क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे सरफेस का लूँ इंटू एच, हाफ एम जी एम बाई 2r। ध्यान से देखोगे तो जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचा 1/4 इज इक्वल टू h बाई आर। h इज इक्वल टू r/4 जो कि ऑप्शन में है, और ये गलत है बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी एक्टिव है पूरे मोशन में, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है ना, राइट। तो इस तरह के लेवल 3 क्वेश्चंस होते हैं जो अगर जिनका आपने प्रॉपर एनालिसिस करके सॉल्व नहीं किया तो ये क्वेश्चंस फिर आपको थोड़ा सा टाइम भी लेके जाएंगे और मार्क्स भी नहीं देंगे। तो आपको ये समझना है, करने के पहले ही आपका ये आना चाहिए। जो आपने देखा था कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये वो प्लान ऑफ एक्शन है जो आप क्वेश्चन लिखने के पहले ही डिसाइड करके रखोगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन। ओके, थिक, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर हो गया है, दिस शुड बी थिक। अ थिक मेटल वायर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी, मतलब लीनियर मास डेंसिटी दिया है Q के टर्म्स में, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर कॉइल O एज सेंटर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉइल अबाउट एक्सिस x डॉट x। अभी अगर ये थिन वायर है तो बेसिकली ये रिंग नहीं हो गया, and this becomes tangent in the plane of ring, जिसका I का फॉर्मूला होता है कितना, तो इसका I का फॉर्मूला आएगा, दिस इज अ रिंग, राइट। तो इसका I का फॉर्मूला आएगा 3/2 mr²। मैंने इसको तुरंत, मुझे ये ऑनेस्टली बोलो तो ये फॉर्मूलेज आई डोंट रिमेंबर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर। मैं इसको टाइम पे बनाता हूँ। कैसे, तो अगर ये मेरा रिंग है, ये एक्सिस का I इज इक्वल टू mr²। अगर मेरे को इसका डायामेट्रिकल एक्सिस का चाहिए, आई कॉल दिस एज IC, डायामेट्रिकल एक्सिस का चाहिए, तो डायामेट्रिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, तो मेरा हमेशा IC/2 होगा, फिर वो रिंग हो या डिस्क हो, दोनों के लिए सेम, दैट इज mr²/2। और मुझे जो एक्सिस चाहिए जिसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज़ दिस एक्सिस जो टेंजेंट है एंड एट अ डिस्टेंस r। सो mr²/2 प्लस mr² विल बी माई Ix डैश जो पूछा है, और मैंने यही ओरली किया 3/2 mr²। अभी अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो यहाँ पे ना ही r है ना ही l है, राइट। मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी Q मतलब मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। सो वहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि मेरा मास इज इक्वल टू Q इंटू L, और ये L लेंथ का वायर हमने बेंड करके एक सर्कल बनाया, तो जो ये L लेंथ है, डोंट यू थिंक वो उसका सरकमफ्रेंस ही होगा, मतलब जितना वायर है उतना सर्कल बनाया, तो ये जो लेंथ है दिस इज माई L, और यही मेरा सरकमफ्रेंस भी है। तो यहाँ से माई R का वैल्यू बिकम्स L/2 पाई, बस ये M का वैल्यू और ये R का वैल्यू अगर हम ये वाले इक्वेशन में डाल दे, विच विल बी QL और L/2 पाई का स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा, 3QL इंटू L² अपॉन 2 इंटू 4 पाई स्क्वायर, दैट इज 3QL³ upon 8 pi square, right, and this will be your answer.
अगेन क्वेश्चन आपको लेवल 2 का है, जहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास है, बट हमको क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज करके फिर फॉर्मूले में डालना है, राइट। सो इसलिए बोल रहा हूँ लेवल 2 क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा दिखेंगे, विच इज़ मीडियम क्वेश्चंस, और थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of a solid sphere is doubled by keeping its mass constant. The moment of inertia about any axis of its diameter. स्पीयर का डायामीटर ही उसका ट्रांसवर्स है, उसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो हो जाएगा, विच इज़ गिवन एज 2/5 mr²। और मुझे दिया है मास कांस्टेंट है, मास को किया कांस्टेंट, ये है नंबर, इसको किया कांस्टेंट, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। और मुझे बोला है कि r डबल हो रहा है, मतलब पहले था r2 अब हो गया 2r1। सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं इस तरह से, ये डबल हुआ मतलब 2 टाइम्स, राइट। तो r2/r1 बिकम्स माई 2 टाइम्स। तो उस हिसाब से मुझे रेशो निकालना है, रेशो निकालना है मतलब i1/i2 निकालना है, राइट, विच इज़ इक्वल टू, सिंस ये इसका स्क्वायर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और अगर r2/r1 इक्वल टू 2 है तो r1/r2 विल बी 1/2, विच इज़ 1:4 का रेशो, एंड दिस विल बी योर आंसर। बेसिक सिंपल फार्मूला, डायरेक्ट रिलेशन एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के होते हैं आपके लेवल 1 के क्वेश्चंस। बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके सीधा फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन किया और कुछ भी नहीं, ओके। और अगर आपको प्रोपोर्शनलिटीज़ के लिए डर लग रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए, ये आएगा, हम आज ही इसको कवर कर लेंगे, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑसिलेशन। ओके, नाउ अगेन लेवल 1 क्वेश्चन। A particle executes a simple harmonic motion with an amplitude a. The distance traveled by it in one periodic time. एक periodic time means what? वो जहाँ से मोशन चालू करेगा वहीं पे आके ख़त्म करेगा। लेट्स से मेरा पार्टिकल यहाँ से अपना मोशन ऐसे चालू कर रहा है, तो पहले जाएगा इतना, फिर वहाँ से वापस, फिर इतना, फिर वापस, और एम्पलीट्यूड ए है, मतलब ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस ट्रैवल किया 4a। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, बिकॉज जहाँ से चालू किया था वहीं पे आके एंड किया। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ नहीं है। दीज आर योर लेवल 1 क्वेश्चंस, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लॉक पेंडुलम has a coefficient of linear expansion 9 × 10⁻⁻7, has a period of 0.5 seconds at 20 degrees Celsius. If the clock is used in a climate where the temperature is 30 degrees Celsius, how much time the clock lose in each oscillation? Okay, देखो अभी ये क्वेश्चन पढ़ते ही एम्बिग्विटी आता है, किस तरह मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो जो पेंडुलम है उसका स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, राइट, फ्रॉम दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपने 11th में थर्मल एक्सपांशन में देखा है, राइट, बट हमारे सिलेबस में तो थर्मल एक्सपांशन है ही नहीं, फिर ये क्या क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपका इनवैलिड नहीं है, बिकॉज थर्मल एक्सपांशन का फॉर्मूला, सेम फार्मूला हमको इलास्टिसिटी में भी दिया हुआ है कि थर्मल स्ट्रेस के लिए, राइट, तो वहाँ का चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ओके। तो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट। नाउ यहाँ से आई हैव अल्फ़ा का वैल्यू 9 × 10⁻⁻7, डेल्टा थीटा भी है, पहले था 20 डिग्रीज, अब हो गया 30 डिग्रीज, तो फाइनल माइनस इनिशियल इज योर डेल्टा थीटा, राइट। और ये पेंडुलम है, पेंडुलम है मतलब t इज़ इक्वल टू 2π√L/g, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये g तो कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है, सो मेरा t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, राइट। और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अगर L बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है, तो ये क्लॉक टाइम लॉस कैसे कर सकता है, ये टाइम
गेन करेगा। ठीक है, देखो किस तरह से ना। अब ये प्रोपोर्शनलिटी के क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सिंपल ट्रिक करोगे कि जो भी अपने पैरामीटर्स है, जैसे यहाँ पे t एक पैरामीटर है, एक l पैरामीटर है, उसको आप रेशो की तरह डाल दोगे, लाइक T2/T1, तो ये हो जाएगा L2/L1। अगर मैं इसको ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको ऐसे डाल रहा हूँ T1/T2, पहले 1 फिर 2, तो मैं L को भी T1/L2 करूँगा। हमेशा याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन आया, फर्स्ट आप ऊपर रेशो बना के रख लो, एक नोन रहेगा एक अननोन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं ये L को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा, L2/L1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो ये मेरा रेशो हो गया, और मेरे को टाइम का तो निकालना है ना, हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी मैं टाइम का रेशो ले रहा हूँ T2/T1, बिकॉज मेरे को T2 निकालना है, T1 दिया है 0.5, तो T2/T1 इज इक्वल टू L2/L1। मैंने T का वैल्यू डाल दिया T2/T1, L का वैल्यू डाल दिया L2/L1, एज सिंपल एज दैट। ओके, कभी भी रेशो का दिखेगा तो इसको डायरेक्टली करो ना। हाँ, अगर आपको यहाँ पे ही प्रॉब्लम है कि हाउ टू फाइंड दिस, तो फिर आपको वो सोचना पड़ेगा कि जो जो कांस्टेंट टर्म होते हैं, जो जो चेंज नहीं हो रहे, टेम्परेचर बढ़ने से मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो चेंज होने वाला नहीं है, ना ही 2π का वैल्यू चेंज होने वाला है। टेम्परेचर चेंज होने से मेरा लेंथ का वैल्यू चेंज हो रहा है, एंड सिंस इक्वेशन के RHS में एक वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसका LHS भी तो चेंज होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू नॉर्मली डू द प्रोपोर्शन का थिंग। आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे और थोड़ा लेवल हम बढ़ाएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे T2/T1 इज L2/L1 एंड L2/L1 का वैल्यू आई नो, सो लेट्स डू दैट। मैं इसको, दिस इज माई स्क्वायर रूट, और L2/L1 का वैल्यू है 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। इसमें अगर मैं वैल्यू डाल दूँ 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 9 × 10⁻⁷, डेल्टा थीटा का वैल्यू इज 10 डिग्रीज 30 - 20 चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9 × 10⁻⁻6। और ये जो स्क्वायर रूट है इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। और अभी इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, राइट, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर है, तो आपको जब भी 1 + x टू द पावर 1/2 रहेगा एंड x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में रहेगा, छोटा वैल्यू, तो वो सिचुएशन में आप सीधा इसको ये फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो वैसे ही हम भी करेंगे 1 + x/2, 1 + x/2, जहाँ पे x का वैल्यू ये हो जाएगा। और अगर 11th में आपका बाइनोमियल हो चुका है मैथ्स में अभी CET के टाइम पे, तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 + 4.5 × 10⁻⁻6, ये हो गया मेरा रेशो। अभी अगर मैं T2 को उधर डाल के 0.5 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे T2 का वैल्यू मिल जाएगा। मुझे T2 का वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना गेन हो रहा है, मतलब आई वॉन्ट T2 - T1 का वैल्यू, राइट। और वो किस तरह निकलेगा, देखो, अगर मैं ये 1 को इधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, T2/T1 - 1 इज इक्वल टू 4.5 × 10⁻⁻6। एंड यहाँ पे अगर मैं LCM निकाल लूँ तो T2 - T1 अपॉन T1 बिकम्स 4.5 × 10⁻⁻6। मुझे ये चाहिए और T1 का वैल्यू आई नो, राइट। तो वो सिचुएशन में मैं बोल सकता हूँ कि मेरा T2 - T1 इज इक्वल टू T1 × 4.5 × 10⁻⁻6, दैट इज़ 0.5। अभी इसको इफ़ यू लाइक 0.5 लिखो, नहीं तो 1/2 कर दो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। सो 5 से मल्टीप्लाई किया, सो आई गॉट 22, दो डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ये मेरा फाइनल आंसर है, विच इज़ दिस। क्वेश्चन वॉज ईजी, एवरीथिंग वॉज ईजी, असली प्रॉब्लम कहाँ आया, यहाँ पे आया, इतना पार्ट। यहाँ पे आके ही आप अटक जाओगे अगर आपको बाइनोमियल नहीं आता तो, या क्लिक टाइम पे क्लिक नहीं हुआ तो। दिखने को जो इजी है वो एक्चुअली लेवल 3 क्वेश्चन है।
प्योर मैथमेटिकल एबिलिटीज़ आपका चेक किया जा रहा है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं लेवल 3 क्वेश्चंस, ये आपका टाइम भी खाएंगे और एनर्जी भी खाएंगे, ये याद रखना। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलास्टिसिटी। Two identical wires of substance P and Q are subjected to equal stretching force along the length. Equal stretching force along the length. उसमें भी if the Q elongation of Q is more than P. देखो दो वायर्स हैं, एक P दूसरा Q, मैं दोनों को सेम फोर्स से खींच रहा हूँ और मुझे बोला है कि इसका डेल्टा, इसका जो एक्सटेंशन इन Q है वो ज़्यादा हो रहा है P से, तो किसका इलास्टिसिटी ज़्यादा। नाउ एक चीज़ याद रखो, जो ज़्यादा स्ट्रेच होता है उसका इलास्टिसिटी कम होता है। ओके, जिसका एक्सटेंशन ज़्यादा उसका इलास्टिसिटी कम। जैसे कि फॉर एग्जांपल रबर एंड स्टील, दोनों को इक्वल फोर्स लगाओ, रबर में ज़्यादा एक्सटेंशन आएगा कंपेयर टू स्टील, मतलब स्टील का इलास्टिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू रबर। यहाँ पे भी वही हो रहा है, क्यू ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है पी से, द इलोंगेशन, द एक्सटेंशन, स्ट्रेच एक्स्ट्रा क्यू का ज़्यादा है, मतलब क्यू का इलास्टिसिटी कम है पी से। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें बोल रहे हैं हम लोग क्यू का इलास्टिसिटी कम है पी से या पी का इलास्टिसिटी ज़्यादा है क्यू से? दिस राइट। अगर आपको ये चीज़ पता है कि जिसका एक्सटेंशन ज़्यादा उसका इलास्टिसिटी कम, क्यू का ज़्यादा है तो क्यू का इलास्टिसिटी कम होगा, दिस इज़ योर आंसर, ख़त्म। पढ़ते ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेवल 1 क्वेश्चन। ओके, now next. Work done in stretching a wire through 1 meter is 2J. What amount of work will be done for elongating another wire of same material with half the length and double the radius of cross section by 1 mm? पहला वायर था 1 mm के लिए मुझे 2 जूल लगा, दूसरा वायर है उसको भी मैं सेम एक्सटेंशन के लिए स्ट्रेच कर रहा हूँ, मतलब L1 इक्वल टू L2। सेम मटेरियल भी है, मतलब इलास्टिसिटी भी सेम होगा, और जो लेंथ है वो हाफ हो रहा है। सो मैं क्या करूँगा, L2 बाई L1 क्या है, हाफ है, ओके। R2 बाई R1 क्या है, डबल है, ओके। मैं इसको ऐसे नहीं लिख रहा हूँ कि पहले R1 था तो अब R2 उसका डबल हो जाएगा फिर यू टेक द रेशियो, नहीं, डबल हो रहा है, सीधा लिख दो। ओके, आपके y इक्वल है, y कांस्टेंट है, दैट इज यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वायर है ना, एंड एक्सटेंशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन, यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसमें ये कांस्टेंट है, ये नंबर है हाफ, मतलब जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, और मुझे फोर्स का रेशो चाहिए, राइट। सो किस तरह निकाला जाएगा फोर्स का रेशो? देखो, y इज इक्वल टू फोर्स पाई आर स्क्वायर एल इंटू एल, लाइक एल अपॉन एल, जहाँ पे स्मॉल एल इज योर एक्सटेंशन, कैपिटल एल इज योर ओरिजिनल लेंथ, राइट। तो वो सिचुएशन में अगर आप देखो यहाँ पे, तो मेरा यंग्स मॉडुलस सेम है बिकॉज मटेरियल सेम है, मुझे बोला है मेरा एक्सटेंशन अभी भी 1 mm ही है, राइट। दो वायर्स जो थे, ये मेरा कैपिटल L है, ओके। सो इसका L डिफरेंट हो रहा है, फोर्स निकालना है मुझे इसके लिए, और पाई कांस्टेंट है, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू क्या बनेगा, F इज इक्वल टू वॉट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, और आप सेम चीज़ करोगे, पहले F का फॉर्मूला बनाओगे, y पाई आर स्क्वायर L अपॉन L, और फिर देखोगे इसमें कांस्टेंट क्या क्या है। सो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो मेरा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई L। अभी यहाँ पे रेशो बनाना है हमको, दैट इज़ F2 बाई F1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर बाई L। हम क्या करते हैं, रिप्लेस R बाई
R2 बाई R1 का स्क्वायर एंड L बाई L2 बाई L1। वैल्यू भी पुट कर दो सीधा, और R2 बाई R1 हमको पता है 2 का स्क्वायर, L2 बाई L1 हमको पता है 1 बाई 2। सो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर, और ये 2 ऊपर जाएगा, दैट इज F2 बाई F1 इज 8। फिर मेरे पास F2 बाई F1 का वैल्यू है, तो मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ, W2 बाई W1 बिकम्स F2 बाई F1 जो कि हो गया 8। मतलब W2 इज इक्वल टू 8 इंटू W1, और 8 इंटू W1 का वैल्यू आई नो 2J, तो मेरा W2 का वैल्यू इज 16 जूल्स एंड दैट विल बी माई आंसर। राइट, आपको एक फॉर्मूला आया, उसमें दूसरे फॉर्मूले का हिंट मिला, फिर आप दूसरे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे और उसको पहले में वापस डालोगे, एंड ये क्वेश्चन लेवल 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एनालिटिकल स्किल चेक किया जा रहा है। दिस इज नॉट अ लेवल 3 क्वेश्चन, दिस इज योर लेवल 2 क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two capillary tubes of different diameters are dipped in water. The rise of water is, diameter हो या आप इसको रेडियस के टर्म्स में सोचो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ओके, एंड राइज की बात कर रहे हैं, मतलब जो वाटर राइज होगा, या हाँ ये डिफरेंट डिप इन वाटर, जो वाटर राइज होगा इन द कैपिलरी ट्यूब, उसको हम हाइट के टर्म्स में लेंगे। और एच आर का रिलेशन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे सिलेबस में, थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो अगर रेडियस बढ़ेगा एच कम होगा, राइट। सो राइज क्या रहेगा, जिसका बड़ा डायामीटर है, जिसका बड़ा डायामीटर है उसका हाइट कम होगा, और जिसका छोटा डायामीटर है उसका हाइट ज़्यादा होगा। सो स्मॉलर डायामीटर मोर राइज इन वाटर, दिस विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल लेवल 1 क्वेश्चन। तो ये देखो, अभी हम जो देख रहे हैं, लाइक वी आर प्रैक्टिसिंग दिस, तो ये प्रैक्टिस करके आपको सिर्फ इतना ही दिखाना है कि ये 2019 के क्वेश्चंस है जितने भी हम कर रहे हैं, एंड दीज ऑल आर वेरी इजी क्वेश्चंस। इजी ना भी बोलो तो एवरेज बोलो, ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, बिलो एवरेज है इनफैक्ट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इज, इसको 1 मिनट के अंदर पढ़ के समझ के सॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही उसका लेवल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, और क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन से लेवल का क्वेश्चन है। ये जो जजमेंट है ये कंसिस्टेंटली आपको फिजिक्स में भी करते रहना है और केमिस्ट्री में भी करते रहना है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन मैंने 2018 से लिया था, जस्ट टू शो यू द सेम कॉन्सेप्ट। जो भी पीछे देखा ना हमने वही कॉन्सेप्ट है, बट उसको रेडियस के टर्म्स में ना देके ये एरिया के टर्म्स में देंगे। अभी ट्यूब है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एक्चुअली योर पाई आर स्क्वायर ओनली, बराबर। और ये क्या बोल रहे हैं, जब भी एरिया ए था मेरा हाइट एच था, फिर मैंने एरिया को रेड्यूस किया टू 1/9, मतलब A2 बिकम्स A/9। A1 था A, तो A2/A1 क्या हो जाएगा, डू द रेशो, वो सीधा 1/9। और A1/A2 अगर ये R के टर्म्स में लिखे जाए तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, दैट इज माई R2/R1 बिकम्स 1/3। पाई कैंसल, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और मुझे पता है H इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे H का वैल्यू डाल दो और यहाँ पे R का वैल्यू डाल दो, राइट। तो H2/H1, अभी H1 का वैल्यू है H, तो उसको H कर देते हैं, एंड R2/R1 का वैल्यू है 1/3, ये 3 ऊपर जाएगा और ये H इधर आएगा, तो मेरे को मेरा आंसर नहीं मिल गया। तो प्रोपोर्शनलिटीज के क्वेश्चंस को डरने का ज़रूरत नहीं होता, आपको सिर्फ वो सब्सटीट्यूट करना है कि H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो H को रिप्लेस कर दो बाय H2/H1,
आर को रिप्लेस कर दो बाई R2 बाई R1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. वेव मोशन. द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस. आपको निकालना है मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी. अच्छा, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी ट्वाइस द वेव वेलोसिटी. अगर मेरा पार्टिकल वेलोसिटी वीपी है तो वो वेव वेलोसिटी का डबल है. और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, जब भी वेव जा रहा है तो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है. एसएचएम कर रहा है तो उसका वेव मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ए. और वेव वेलोसिटी क्या होता है, एन लैम्बडा. व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एन ए इज इक्वल टू 2 पाई एन लैम्बडा. अभी जब भी एक वेव जाता है तो उसके पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, मतलब वहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल एंड टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज सेम एज दैट ऑफ वेव. मतलब वेव का और पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ये सेम होगा अगर वो प्रोग्रेसिव वेव है तो अगर ये सेम है तो मेरा यहाँ से n 2 गेट्स कैंसल और मेरे पास बचा पाई ए इज इक्वल टू लैम्बडा. अभी ये इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये मेरा एम्पलीट्यूड ए हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी n हो गया और ये मेरा 1 बाई लैम्बडा हो गया. रिमेंबर द ओरिजिनल इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा. राइट, सो ये c का वैल्यू इज़ 1 बाई लैम्बडा, तो लैम्बडा का वैल्यू इज़ 1 बाई सी. तो ये लैम्बडा का वैल्यू मिल गया. a का वैल्यू इज़ a स्मॉल a, डाल दो. पाई a इज़ इक्वल टू 1 बाई सी. ऑप्शंस देखो, c इज़ इक्वल टू के टर्म्स में, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, 1 बाई पाई a. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, सीधा वैल्यूज उठा के डाल दो. लेवल, ये एक्चुअली लेवल 2 क्वेश्चन है बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. आपको अगर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ही पता नहीं होगा, ए ओमेगा है, आप कंफ्यूज हो गए तो आप इसको आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते हो. राइट, सो दैट्स वाई लेवल 2. डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मतलब अगर पता नहीं है तो नहीं है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Transverse wave is propagating on the string. The linear density of vibrating string is 10 to the power minus 3 and the equation of wave is given as, where x and y are in meters and t in seconds. The tension in the string पूछा है. Tension in the string एक ही जगह पे आता है velocity of wave on a stretch string के अंदर या फिर frequency के अंदर. राइट, जहाँ स्टेशनरी होगा स्ट्रेच वायर का फ्रीक्वेंसी के अंदर, बट यहाँ पे वी आर डोंट हैव दैट. वी हैव स्ट्रेच वायर. ट्रांसवर्स वेव जा रहा है स्ट्रिंग के ऊपर जो कि ऑब्वियसली स्ट्रेच्ड है. राइट, तो इन दैट सिचुएशन हमको टेंशन वहीं पे मिलेगा. सो यहाँ से कैन आई डू दिस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और m को इधर भेज दिया तो दैट्स माई टेंशन, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. और मुझे ये वेलोसिटी चाहिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 2 पाई x बाई लैम्बडा. ये इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन. सो यहाँ पे कंपेयर करो तो मेरा ओमेगा का वैल्यू इज़ 15 एंड 2 पाई बाई लैम्बडा का वैल्यू इज़ x, सॉरी 1. यहाँ पे कुछ नहीं है ना, मतलब 1. तो इसका वैल्यू 1 और ओमेगा का वैल्यू 15 और ओमेगा को आप 2 पाई एन के टर्म्स में लिख सकते हो और आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो. लाइक दिस विल बिकम योर 2 पाई एन इज इक्वल टू 15, एन का वैल्यू 15 बाई 2 पाई एंड 2 पाई बाई लैम्बडा इज इक्वल टू 1 मीन्स लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई. और फिर v बिकम्स योर n लैम्बडा एंड ऑल स्टफ. 15 बाई 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, मेरा वेलोसिटी का वैल्यू 15 और फिर इसमें डालो. राइट, ये एक तरीका हो गया. इसको एक शॉर्टकट भी है. ओके, व्हाट इज़ द शॉर्टकट फॉर दिस? कोई भी इक्वेशन जब भी आप देखते हो और ये कॉमनली यूज़ होता है, दैट्स वाई वी रिमेंबर दिस. किसी भी वेव का वेलोसिटी अगर निकालना है फ्रॉम इट्स इक्वेशन तो आप करते हो, वेलोसिटी क्या होता है?
ओके तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. देखो 2 पाई n कोएफिशिएंट ऑफ टाइम ओमेगा का वैल्यू 2 पाई n, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 पाई विल गेट कैंसिल, लैम्बडा ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा n लैम्बडा. तो आप यहाँ पे शॉर्टकट कर सकते हो. सो इफ़ यू नो दिस थिंग कि कोएफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x मेरा वेव वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो. ये जो m है, दिस स्मॉल m, ये मास नहीं है, दिस इज़ योर लीनियर डेंसिटी. स्मॉल m इज़ कैपिटल M बाई L. आपने स्टेशनरी में पढ़ा है ये चीज़, वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़. सो ये हो गया 10 टू द पावर -3 इंटू का स्क्वायर. v का वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ t, कोएफिशिएंट ऑफ t इज़ 15, कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ कुछ नहीं है मतलब 1. सो माई आंसर इज़ 225. दिस वन. तो अगर फॉर्मूला पता है फट से प्रॉब्लम आएगा, नहीं पता तो एक छोटा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जैसे हमने किया था थोड़ी देर पहले. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेशनरी वेव्स. Two open pipes of different lengths and of same diameter in which the air column vibrates with fundamental frequencies N1 and N2 respectively. When both pipes are joined to form a single pipe, तो उसका fundamental frequency क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है this. सॉरी, ये नहीं, ऐसा रेसिप्रोकल का एडिशन. ओके, देखते हैं किस तरह. याद नहीं है फाइनल एग्जाम में तो क्या करोगे. सो लेट्स से ये मेरा पहला पाइप है, ये मेरा दूसरा पाइप है, मैंने दोनों को कनेक्ट किया तो मुझे एक बड़ा पाइप मिल गया. एंड ऑल ऑफ देम आर ओपन पाइप्स. अगर ओपन पाइप्स है तो मैं इनका फंडामेंटल मोड ही एज्यूम कर रहा हूँ. इसका लेंथ L1, इसका लेंथ L2, तो इसका लेंथ L1 प्लस L2. इसका फ्रीक्वेंसी N1, ओपन पाइप है, V/2 L1, N2 V/2 L2. सो माई L1 बिकम्स व्हाट. मैं लेंथ के टर्म्स में ले रहा हूँ बिकॉज मैं लेंथ को ऐड कर रहा हूँ, तो मैं लेंथ के टर्म्स में लिख रहा हूँ इक्वेशन. V/2 N1, L1 उधर N1 इधर, L2 इज इक्वल टू V/2 N2. और इसका इक्वेशन N इज इक्वल टू V/2 L1 प्लस L2. इसमें आप L1 L2 का ये वैल्यूज़ डाल दोगे. So V/2 N1 plus V/2 N2. V/2 कॉमन, अंदर बचेगा 1/N1 प्लस 1/N2. V कैंसिल, 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचा N इज इक्वल टू 1/1/N1 प्लस 1/N2. टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स मुझे मिल जाएगा दिस. एंड दैट इज़ योर आंसर. लेकिन मुझे ये फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे ये फॉर्म में चाहिए. सॉल्व कर लो. N1 प्लस N2 अपॉन N1 N2 और उसका रेसिप्रोकल, विच इज दिस. हमको तो पहले ही पता था, तो क्वेश्चन पढ़ते ही मैं मार्क कर सकता था. तो दीज आर फ्यू शॉर्टकट्स जो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे. नहीं रहते हैं तो टाइम पे बना लो. ओके, बिकॉज ये वाला चीज़ आपको लाइक एक ओपन पाइप है, एक क्लोज पाइप है, फिर दोनों को कंबाइन करके एक बड़ा क्लोज पाइप बनाया, तो उसका नेट फ्रीक्वेंसी कितना, 2 ओपन पाइप से उनको किया तो उसका नेट फ्रीक्वेंसी कितना. ये 2-3 फॉर्मूलेस आपको ऑटोमेटिकली कॉमन है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वी नो दिस. ओके, वी शुड नो दिस. In fundamental mode, the time required for the sound wave to reach up to the closed end of a pipe filled with air is t seconds. The frequency of air column is. Interesting. Closed end pipe है, यहाँ से जब ये साउंड जाएगा तो वो साउंड आपको लगता नहीं है ये L डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पूरा, और ये ट्रैवल करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है, t. और इसमें वेलोसिटी तो v होने वाला है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा V/4L. और साथ ही में मैं ये भी लिख सकता हूँ माई वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम.
डिस्टेंस ट्रैवल किया l इन टाइम t सेकेंड्स, तो v इज इक्वल टू l बाई टी, राइट। यहाँ से l का वैल्यू अगर बनाओ तो वो हो जाएगा vt, ये वैल्यू इसमें डाल दो, v गेट्स कैंसल, यू विल हैव 1/4t, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपल एनालिटिक्स आपको पता होना चाहिए, लाइक पता ही होता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे वी हैव जनरल टाइम, हमको हर जगह पे टाइम पीरियड की ही बात की हुई है इन स्टेशनरी। अगर जनरल टाइम दिख रहा है तो थिंक इन दैट वे कि ये एक्स्ट्रा टाइम में क्या हो रहा है, मेरा साउंड वेव यहाँ से यहाँ जा रहा है विथ वेलोसिटी v, साउंड वेव विथ वेलोसिटी l डिस्टेंस कवर कर रहा है इन टाइम t, लग गया। सो द वे यू रीड द क्वेश्चन और उसको किस तरह आप कॉम्प्रीहेंड करते हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आपको ये लास्ट 15 दिन में 15 दिन में उसको मास्टर करना है, और ये लास्ट में ही किया जाता है। पहले करते हो तो बहुत अच्छा, बट नॉर्मली इस चीज़ का प्रैक्टिस जो है या फिर ये जो स्किल है, स्किल को हम जितना ज़्यादा चमकाएंगे उतना ज़्यादा हम भी चमकेंगे। तो लास्ट के 15-20 दिन में यही चीज़ें की जाती है। ओके, अब अभी आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, अभी आप आपके स्किल्स को टोन करोगे सो दैट कॉम्पिटिशन में आपको एक एज मिले। ओके, नाउ केटीजी एंड रेडिएशन। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन दिखने के लिए कितना टफ है, बट इट्स अ लेवल 1 क्वेश्चन। ओके, मे बी लेवल 2 में कंसिडर करो तो कर सकते हैं। सो लेट्स सी, if Cp and Cv are the molar specific heats of ideal gas at constant pressure and volume respectively, gamma is the ratio of two specific heats and R is universal gas constant। आपको Cp निकालना है in terms of gamma and R, आपको Cv नहीं चाहिए। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक दिया हुआ है गैमा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, और दूसरा मुझे पता है Cp माइनस Cv इज R, जिसमें मुझे Cv नहीं चाहिए। जो नहीं चाहिए उसको आप सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R, ये वैल्यू को इसमें डालोगे, गैमा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cp माइनस R, राइट। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, गैमा Cp माइनस गैमा R इज इक्वल टू Cp, दोनों Cp's को साथ में, गैमा Cp माइनस Cp इज इक्वल टू गैमा R, Cp कॉमन, गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू गैमा R, Cp इज इक्वल टू गैमा R अपॉन गैमा माइनस 1, दिस वन, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, एक चीज़ दूसरा चीज़ और दोनों को कंबाइन किया है सिर्फ, राइट। अभी ये थोड़ा आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा किया है, आप उल्टा भी कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे मैं Cv का वैल्यू इसमें से इसमें डालने के बदले यहाँ से Cv का वैल्यू लूँगा विच इज़ Cp बाई गैमा, और उसको इसमें डालूँगा। तो कैसे होगा, Cp माइनस Cp बाई गैमा इज इक्वल टू R, Cp कॉमन 1 माइनस 1 बाई गैमा इज इक्वल टू R, गैमा माइनस, सेम चीज़, 3 स्टेप यहाँ पे भी 3 स्टेप यहाँ पे भी, चौथे में तो आंसर ऐसे भी आ ही रहा है, राइट। सो ये लेवल 1 क्वेश्चन है एक्चुअली, लेवल 2 में बहुत लोग कंसिडर करेंगे इसको, तो अप टू यू। ना ये आया आपका रेफ्रिजरेटर्स पे क्वेश्चन। ओके, ना अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, Q1 इज द हीट रिलीज्ड टू द हॉट रिजर्वायर and then the heat extracted from the cold reservoir is Q2। ओके, अभी क्या होता है, जितना हीट रिलीज होता है हॉट रिजर्वायर से, उसमें से कुछ हीट वर्क डन के लिए जाएगा और कुछ हीट कोल्ड रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट होगा बेसिकली। ओके, एंड सेकेंड चीज़ जो ये अल्फ़ा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है आपका कितना, दिस, राइट। सो यहाँ से इफ़ यू टेक Q2 इज इक्वल टू, मुझे फाइनल आंसर चाहिए Q1 और अल्फ़ा के टर्म्स में। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Q2 का वैल्यू लेंगे विच इज़ इक्वल टू, ओके एक मिनट, मुझे W नहीं चाहिए, Q2 का वैल्यू निकालना है Q1 के टर्म्स में। ओके,
W नहीं चाहिए, सो वी विल टेक W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू Q2 Q1 माइनस Q2। ये W का वैल्यू इसमें डाल दिया, और अगर आप देखोगे आपको याद होगा तो ये वाला फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया है। ओके, नाउ सेम चीज़ फिर से Q2 को साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा Q1 माइनस अल्फ़ा Q2 इज इक्वल टू Q2 को साथ में लिया तो वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 1 Q2 इज इक्वल टू अल्फ़ा Q1। मुझे Q2 का इक्वेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q1, so Q2 is equal to alpha Q1 upon alpha plus 1, which is this. Okay, तो पिछला क्वेश्चन भी हमने देखा, कुछ इसी टाइप का कैलकुलेशन था, यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का कैलकुलेशन है। दो इक्वेशंस, एक ये वाला दोनों को कंबाइन कर दिया और सॉल्व कर लिया। तो केटीजी का जो मेजर पार्ट है CRMS वेलोसिटीज़ के वेरियस फॉर्म्स या फिर वो सब आप कर लोगे। जहाँ पे बच्चे डरते हैं वो ये वाला चीज़ है जो कि एक्चुअली काफ़ी इजी है। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट्स हो गया या फिर रेफ्रिजरेशंस का हो गया, इस पे क्वेश्चन अभी रेगुलरली आ रहे हैं। इफ़ यू चेक 2018 का कोई पेपर तो उसमें भी है, इसमें भी है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर फियर ऑफ दिस क्वेश्चन। उन्होंने ईजी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके डाल दिया। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ जाता है, यू आर गुड टू गो। सो पेपर इज़ टेक्निकली ईजी, देखो पूरा पेपर हो गया एक्सेप्ट दैट ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन जो कि एक लेवल 3 क्वेश्चन था। उसके अलावा एक दो लेवल 3 और आए हैं जो बहुत ईजीली हमने सॉल्व किया। मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं थे। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ चेक की जा रही थी, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ नहीं चेक की जा रही थी वहाँ पे। और बाकी सब लेवल 2, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर ये लेवल 2 होगा। तो वंस यू प्रैक्टिस दैट एंड उसको किस तरह करना है वो आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ओके, सो गुड लक विद दैट। आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में वी विल बी टॉकिंग ऑन फिज़िक्स 2 पेपर का सेकेंड पार्ट, थोड़ा बहुत 11th के क्वेश्चंस, एंड साथ ही में अभी हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन ट्रिक्स पे भी आएंगे, बिकॉज नॉर्मली कैलकुलेशंस ये फिज़िक्स 1 में कम और फिज़िक्स 2 में ज़्यादा होते हैं। फिज़िक्स 1 में मैक्सिमम क्वेश्चन जिस तरह आज देखे हमें, थोड़े बहुत रेशोज़ के, थोड़े बहुत डायरेक्ट फार्मूलेस के एंड ऑल, वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मेन रहता है फिज़िक्स 2 जहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस एंड ऑल सब आपको करना पड़ेगा। सो हैव अ वेरी गुड डे। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में with the strategy to cope up to score high marks, to cope up the stress and score high marks, and एक बहुत सुंदर approximation का concept है which is a trick जो आपको help करेगा in calculation। और of course ये सब हम देखेंगे while solving CET 2019 के questions। Okay, bye bye।